Good morning everyone. My name is Priya Yadav. Today we are going to discuss the basic terms of accounting. We'll be discussing 5 terminologies of accounting. However, before starting this video, you just go to the prior video of mine wherein I have discussed the history of accounting, that is how it all started, the meaning of accounting, what do you mean by accounting in actual, what you will do by understanding the terms of accounting when you don't know what accounting is altogether. So just go back to that video and see the video, as well as the aims or the objectives of accounting is also discussed in that video. So now today we are going to deal with the basic terms of accounting. There is a complete list, somewhere around there are 30 to 26 terms, 30 to 35 terms are there in accounting which will come through. We are going to discuss just 5 terms today. I'll make separate videos for different terms क्योंकि वो फिर एक साथ बहुत ज़्यादा लंबा lecture हो जाएगा. So let's start up with today's lecture. The basic terms of accounting. As you know, the pro forma of my class, you don't have to write anything until and unless I ask you to write. Whatever I am going to explain in a story format, वो इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए. आपको स्टोरी लिखनी नहीं है. Whatever your academic thing is required, I'll dictate it. So take a seat back, drop your pens down, and start and just listen to the story. The first term which we'll be discussing is entity. The second term which we'll be discussing will be transaction. The third term which we will be discussing is capital. The fourth term which we will be discussing is sales. And the fifth and last but not least term which we are going to discuss today is drawings. Alright. Now, अगर आपने पहला वीडियो सुन लिया है, so on the second, now from this video, अपने ऊपर टॉपिक में हेडिंग डाल ले बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जस्ट राइट इट ऑन अ फ्रेश पेज कि आपकी कौन सी टर्म्स है, और उस पेज को आप छोड़ देना और एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, इन सब की डेफिनेशन लिखना. केवल एक पेज पे हर एक टर्म की लिस्टिंग होनी चाहिए कि टर्म्स हैं कितनी अकाउंट्स की, वो सब आप सिर्फ एक ही पेज पे लिखिए. दिस इज हाउ यू शुड मेक योर नोट्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फैशन, ताकि जब आप आगे जाकर के रिवाइज करें आपको आसानी हो. सो जस्ट जॉट डाउन दीज टर्म्स, द टॉपिक ऑफ द क्लास, बेसिक टर्म्स एंड दीज टर्म्स ऑन अ फ्रेश पेज. एंटिटी, ट्रांजैक्शन, capital, sales, drawings. Alright. Now take a fresh page. उधर इन सब की जो academic language में definition होगी I'll dictate. Now just listen to me. We will just start up with the first entity. Entity का मतलब क्या होता है? Entity का मतलब होता है कि आप किसी को उसकी individual identity से identify कर सके. For example, this pen. इस पेन की एक identity है. क्या? कि ये black marker है. Now also this pen has an identity कि ये एक ब्लैक मार्कर है और एक रेड मार्कर है. लेट मी से ब्लैक वाला A है और रेड वाला B है, तो हम देख सकते हैं A भी कौन सा है. नाउ ये A मार्कर है, ये B मार्कर है. कौन सा है A, कौन सा है B, कौन सा है? यू कैन नॉट मेक इट आउट नाउ. तो एक सेपरेट एंटिटी जैसे आप पता कर सके उसको हम कहते हैं एंटिटी, कि आपको उसको देख के आइडेंटिफाई हो सके कि ठीक है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज समथिंग नोन एज एंटिटी. अब हमने देख भी लिया कि अलग अलग सिचुएशन में एंटिटी की डेफिनेशन वेरी कर सकती है. कि रेड और ब्लू पेन के साथ हमने रख के देखा तो आप पता लगा सकते हैं ए और बी, बट अगर दोनों चीजें सेम हो गई तो पता लगाना मुश्किल है. एक करंट एग्जाम्पल लेते हैं, या एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो आप रोज देखते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में. मेरे को खुद को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, आपको वॉच खरीदनी है, आपके पास चॉइस है. आपको लिकॉस्टे की वॉच खरीदनी है, आपको टाइटन की वॉच खरीदनी है, आपको अरमानी की वॉच खरीदनी है, राडो की वॉच खरीदनी है, रोलेक्स की वॉच लेकर के आनी है. आप कैसे पता लगा रहे हैं कि मुझे कौन सी घड़ी खरीदनी है? क्योंकि ये डिफरेंट एंटिटीज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, पर जो दुकानदार बेच रहा है उसकी भी एक आइडेंटिटी है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अब आपको समझ में आया कि एंटिटी का मतलब क्या होता है, कि आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. लीगल टर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो जस्ट टेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ एंटिटी नाउ. एंटिटी मीन्स अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. एंटिटी मीन्स
a definite individual existence, full stop. Underline definite legal existence, underline definite individual existence. Entity means a definite individual existence and underline definite individual existence, full stop. Business entity means a specifically identifiable business enterprise. Business entity means a specifically identifiable business enterprise, full stop. In second line, for example, PC Jewelers, Titan Watches and etc. ठीक है, और इस डेफिनेशन में जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज है उसको अंडरलाइन कर लें। अभी अंडरलाइन क्यों कराया गया है? क्योंकि ये की टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं। अब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया एंटिटी का मतलब क्या होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और उस डेफिनेशन में अंडरलाइन किए गए हुए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, अगर आपको एग्जाम में देना है तो आपको समझ में आ गया होगा एंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। नाउ अब हम दूसरा टर्म देखते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन कुछ खरीदा आपने, ठीक है, मिंत्रा से खरीदा, Amazon से खरीद लिया, कहीं से भी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आपने कुछ खरीदा, तो आप कुछ पेमेंट करते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। लेट्स एज्यूम आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वर्चुअल पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसमें लिखा आता है ना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। पेटीएम से करते हैं तो भी लिखा आता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक इवेंट कंडक्ट किया किसी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब दो या दो से ज्यादा लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे जो एक पर्सन है वो आप हैं, सेकेंड पर्सन वो ई कॉमर्स एंटिटी है, जो अभी हमने यहाँ पे वर्ड इरेज किया, एंटिटी है वो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी जेब में पैसे पड़े हुए 10,000 रुपये, आपने इस जेब से निकाल के इस जेब में रख लिए, तो क्या वो कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं, क्योंकि आपने एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रख लिए। क्या उसके बदले आपको कोई चीज मिली इस जेब से निकाल के इस जेब में रखने में? नहीं। कोई आपका प्रॉफिट हुआ? नहीं। लॉस हुआ? नहीं। क्या यहाँ से 10,000 रुपये निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में रखने में वो 10,000 9,000 हो गए या वो 10,000 11,000 हो गए? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए वो एक ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एक इवेंट हो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑलराइट, आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, उस पैसे से आप जाकर के दुकान से सामान लिया, ये ट्रांजैक्शन हुई है दो लोगों के बीच में। आपने एक हाथ से पैसे दिए, दूसरे हाथ से सामान खरीदा, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हुआ है। जबकि आपने जब पैसे इस जेब से निकाल के इस जेब में रखे, कुछ नहीं हुआ। ऑलराइट, लेट्स टेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ transaction now. Transaction, an event involving some value between two or more parties. An event involving some value between two or more parties. Underline the term event and underline the term some value. इवेंट का मतलब ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लो अभी इवेंट पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टर्म है अपने आप में, जो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी, क्योंकि वो अपने आप में ही 10 मिनट का टॉपिक है पूरा। और सम वैल्यू भी समझ में आया कि आप फ्री में थोड़ी ना कुछ हो रहा, आपको पैसे दिए दुकानदार से तो आपको सामान मिला। अब बार्टर सिस्टम का जमाना थोड़ी है, उसमें भी वैल्यू इन्वॉल्व होती थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि आपने चावल बेचे तो आपको गेहूं मिला। अगर वो चावल की कोई वैल्यू नहीं होती तो कोई नहीं खरीदता उसे और ना ही आपको गेहूं मिलता। तो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कुछ वैल्यू होनी जरूरी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू ही इन्वॉल्व नहीं है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, परचेज ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, समझ में आया, दुकानदार से सामान लेकर के आए,
एग्जाम्पल, रिसिप्ट ऑफ मनी, जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, उनको पैसा रिसीव हुआ, आपको गुड्स रिसीव हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्रेडिटर्स एक टर्म है अकाउंटिंग का। क्रेडिटर बेसिकली वो इंसान होता है जिसको आपको पैसे देने होते हैं, जिसने आपसे उधारी ली होती है, ठीक, आपने उसको पैसा दे दिया। नाउ इन द अनदर पैराग्राफ राइट, transactions can be cash transactions or a credit transaction. Transaction can be a cash transaction or a credit transaction. कैश मतलब पैसा, क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे सामने परचूने की दुकान से आपका खाता नहीं चलता रहता, पूरे महीने का चल रहा है, आखिर में पेमेंट लेके आ रहे हैं, उधारी में सामान ले रहे हैं, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टर्म व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेल्स। पहले सेल्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद कैपिटल को डिस्कस करेंगे। सेल्स का मतलब क्या होता है? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 1000 रुपए लगाए, शाम तक आपने उस 1000 से सामान खरीदा। अब उस 1000 रुपए के सामान से आपने 1500 रुपए कमा लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरी सेल 1000 रुपए की हुई है या मेरी सेल 1500 की हुई है? मेरी सेल 1500 रुपए की हुई है, ठीक है। सेल कुछ भी नहीं होता, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। जितना मेरा सामान बिक गया, जितने की मेरी बिक्री हो गई, वो मेरी सेल है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। समझ में आ गया? ये तो बहुत नॉर्मल और जनरल टर्म है। सो इसका डेफिनेशन लिखिए, सेल्स Sale are total revenue from goods or services sold or provided to customers, ठीक है। जो भी आपको टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपने गुड्स को बेचा उससे और जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी उससे, ठीक है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अभी परचूने की दुकान का एग्जांपल समझा था। सपोज आपकी एक परचूने की दुकान है। परचूने की दुकान का मतलब होता है कि आपका एक नॉर्मल जो हमें राशन की जो छोटी सी शॉप होती है वो है। तो अब आप सामान जो आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है उसको तो आप ऑन द स्पॉट कैश में ही बोलेंगे कि नहीं भैया मेरा ऐसा उधारी मत कर, पैसे देके जा। पर कोई आपका रेगुलर कस्टमर है तो आप उसके साथ ये कर लेते हो ना कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है ना, आप कल आकर के दे देना। तो फिलहाल के लिए आपने उस सामान को उधारी पे बेच दिया। आपकी तरफ से तो वो सामान गया आपकी दुकान से बाहर, आपकी तरफ से तो सेल्स हो गई, पर क्या पैसा मिला उसके बदले? नहीं मिला। पैसा कल मिलेगा या हो सकता है 1 महीने बाद भी मिले, पर सामान तो गया। इसको कहते हैं क्रेडिट, उधारी पे सेल कर दी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म विच विल डिस्कस इज ड्रॉइंग्स। आपने एक बिजनेस शुरू किया, आप अपने बिजनेस में ऑफिस में बैठे हुए हैं, सडनली योर वाइफ एंटर, उसको शॉपिंग जाना है, गिव मी 1 लाख रुपीज। आपने बिजनेस की पैसे की ड्रॉर, बिजनेस का जो टेबल है उसकी ड्रॉर खोली, 1 लाख रुपए निकाले और दे दिए। बिजनेस का खर्चा नहीं है वो, पर बिजनेस के टेबल से हो रहा है, बिजनेस के कॉफिन से हो रहा है, बिजनेस में जहां कैश रखा होता है वहीं से हो रहा है, उसी की तिजोरी से आप पैसा दे रहे हैं। पर ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो आपके घर की ट्रांजैक्शन है। सो दिस इज ड्रॉइंग्स। जब आप बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर लें उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। आपने बिजनेस के पैसे से अपने बच्चों की स्कूल फीस भर दी, दिस इज ड्रॉइंग्स। बिजनेस के पैसे से डोमेस्टिक हेल्पर की पेमेंट कर दी, दिस इज ड्रॉइंग्स। ऑलराइट, टेक डाउन द डेफिनेशन। Drawings refers to withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use. Drawings refers to
द विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, full stop. Drawings reduces the investment of the owner. Drawing reduces the investment of the owner. आपके पास कैश पड़ा था आपके टेबल पे 2 लाख रुपए का, एज्यूम कर लेते हैं। आपकी वाइफ कैश ले गई 1 लाख रुपए, बैलेंस कितना बचा? 1 लाख रुपए। तो क्या आपके बिजनेस की कैपिटल कमी हो गई? जितना सामान आप पर्सनल यूज पे लेके जाएंगे उतनी आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। समझ आया? अब मैंने डेफिनेशन में बोला है ड्राइंग्स कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। कैश तो समझ में आ गया, वाइफ पैसे ले गई। गुड्स का मतलब क्या होता है? सपोज आपकी सुपर स्टोर की शॉप है, ठीक है, वहां पर अब आपको अपने घर में सामान चाहिए, राजमा चाहिए, चावल चाहिए, छोले चाहिए, बच्चों को चॉकलेट चाहिए। आप आए, अपने दुकान से उठाया और अपने घर को निकल लिए। आप अपनी दुकान से क्या लेके गए? गुड्स। कैश थोड़ी लेके गए हो आप तो गुड्स लेके गए हो। सो दिस इज गुड्स। क्या? सामान लेके चले गए अपने पर्सनल यूज के लिए। आई होप इट्स क्लियर नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ड्राइंग्स। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट बट नॉट लीस्ट द टर्म कैपिटल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है, इसको ध्यान से सुनना। आपने एक बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस आजकल तो वर्चुअल बिजनेस का टाइम है, आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर जब तक इतना डिजिटलाइजेशन नहीं आया था उससे पहले आपको कुछ कैश लगता था। लेट्स एज्यूम आपको एक गाड़ी का शोरूम खोलना है, आपके पास बहुत सारे पैसे अपने घर पे। सो यू आर प्लानिंग टू ओपन कि मैं तो बिग बॉय टॉयज जैसा एक कोई कंपनी रन करने वाला हूं या वाली हूं। अब उस शोरूम को खोलने के लिए आपको कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है। अब आपको एक बिल्डिंग चाहिए रेंट पर, 1 लाख रुपए का रेंट है। आपने अपने घर में बोल दिया मुझे कैश चाहिए 1 लाख रुपए। फादर ने बोला क्यों? आपने बोला बिजनेस करूंगा। उन्होंने पूछा क्या? गाड़ियों का। तो 1 लाख रुपए में क्या होगा? रेंट चुकाऊंगा। फादर भी लाइक आर यू मैड? 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू होता है, वो भी गाड़ियों का। सिर्फ रेंट का खर्चा ले रहे हो आप, बाकी का खर्चा कहाँ है? तो आप बोलोगे गाड़ी भी खरीदूंगा, कार परचेज। लेट्स अज्यूम यू नीड 1 करोड़ रुपए फॉर इट। तो आप अपने घर से अब क्या लेकर के आए? अब आपने लगाया कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा होगा, सेल्स बॉय सेल्स गर्ल भी रखने पड़ेंगे, 1 साल का प्रोविजन लेके चलते हो आप। आपने मिसलेनियस एक्सपेंस में भी डाल देती हूँ मैं इसे, वैसे आप सैलरी में भी डाल सकते हैं इसे, जो आपका दिल करे फिलहाल के लिए। बाकी स्पेसिफिकली आई टेल यू। लेट्स अज्यूम आपने 12 लाख रुपीस रख लिया। अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1 करोड़ 13 लाख की। दिस इज कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए जो आपका खर्चा लगे दैट इज कैपिटल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आप कैश फॉर्मेट में लेकर के आए, कैश लेके आए, गाड़ियों खरीदने के लिए भी कैश लेकर के आए, सेल्स बॉय सेल्स गर्ल की सैलरी पे करने के लिए भी कैश लेके आए। इसका मतलब आपको 1 करोड़ 13 लाख रुपए कैश में चाहिए। आपके पास इतना कैश नहीं है पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो आपकी कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? लेट्स अज्यूम आपको एक रियल एस्टेट का बिजनेस करना है। आई गिव यू वेरी गुड करंट एग्जांपल, कार से रिलेटेड, बट एक बार ये वाला सुन लेते हैं। कैश से आपको बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है रियल एस्टेट के लिए। 1 लाख रुपए चाहिए आपको रेंट पे करने के लिए। लोग आएंगे जमीन पे तो बैठाओगे नहीं, फर्नीचर भी चाहिए लोगों को बिठाने के लिए। एजम्पशन लेके चलते 1 लाख का फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर आप खरीद जाएंगे, ठीक है, प्लस स्टेशनरी, रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, कार्ड्स भी छपवाने हैं,
लेट्स अज्यूम 10,000 का खर्चा हो गया, कार्ड्स वगैरह छपने में, रजिस्टर रखने में, ये सब में 2,10,000 रुपए ओनली। लेट्स मेक इट 1,20,000 ताकि आपका रेंट में 10,000 रुपए रेंट के हिसाब से जुड़ जाए। सो इट विल 2,30,000। ठीक है, अब रियल एस्टेट का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। इससे मुझे आपको एक चीज समझानी है, कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस में कैपिटल कैश के फॉर्मेट में भी हो सकती है, एसेट्स की फॉर्मेट में भी हो सकती है। फर्नीचर आपका एसेट है, स्टेशनरी आपकी एसेट है। एसेट का एक नॉर्मल सा मतलब समझ ले अभी। एसेट मतलब क्या? एसेट मतलब कोई भी वो चीज जो आपके बिजनेस में है, जो आपको पैसा कमाने में मदद करेगी, वो एसेट है। एसेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तो अभी के लिए आप इतना समझ ले, एसेट मतलब क्या? एसेट मतलब हर एक वो चीज जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करेगी। ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल होती है, वो कैश में भी हो सकती है, वो फर्नीचर में भी हो सकती है। सो लेट्स टेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल नाउ। एक मुझे आपको करंट एग्जांपल देना है, वो मैं तब दूंगी जब आप डेफिनेशन लिख लोगे। ऑलराइट, it's a very famous example of the example of a very famous entrepreneur from Middle East. Write down right now. Capital refers to the amount invested by the owner. Capital refers to the amount invested by the owner / proprietor. प्रोप्राइटर, जो बिजनेस, जो अकाउंट्स की भाषा होती है, उसमें ओनर को ही प्रोप्राइटर कहते हैं। इसलिए अब कॉमर्स के बच्चे को तो कॉमर्स की फील आनी चाहिए। यूज द टर्म प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ ओनर। ठीक, खुद का बिजनेस है तो प्रोप्राइटर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर / प्रोप्राइटर in a business enterprise. In a business enterprise. Full stop. Underline the term amount invested and proprietor. Now, amount invested may be in the form of cash, goods or asset. Amount invested may be in the form of cash, goods or asset. Underline may be cash, goods, assets. Full stop. For firm, it is a liability towards proprietor. For firm, it is a liability towards proprietor. इसके आगे लगा लो क्वेश्चन मार्क. Because the proprietor is separate and distinct from the business. Because the proprietor is separate and distinct from the business. Put question mark, full stop. और इस लाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा ले. क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग है, इसमें आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अंदर आ जाएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. वो हम तब डिस्कस करेंगे. अभी आप क्वेश्चन मार्क केवल इसलिए लगा ले क्योंकि जब आप आगे जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे लिंक कैसे करना है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू डेवलप अ लिंक इन फर्दर क्लासेस. तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं है कि आपको चीज समझ नहीं आई. क्वेश्चन मार्क मैं आपसे सिर्फ तभी लगवाऊंगी जब वो चीज को मुझे आगे फ्यूचर में कभी डिस्कस करना होगा, और तब आपको उस चीज को फाइंड आउट करके वापस आने में और समझने में बहुत आसानी होगी. सो जस्ट पुट अ स्मॉल क्वेश्चन मार्क ओवर देयर. ठीक है. फ्रॉम, अब मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर / proprietor in a business enterprise, full stop. Amount invested may be in the form of cash, goods or assets, full stop. For firm, it is a liability towards proprietor because the proprietor is separate and distinct from the business, full stop. क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना. क्यों वो लाइबिलिटी है और क्यों बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग है, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. नाउ कैपिटल की ही डेफिनेशन में एक फॉर्मूला लिखें. कैपिटल
इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और इसको आप ऐसे बॉक्स में रख ले और यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क बना दो एंड पुट अ सर्कल। ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी जब मैं एसेट समझा दूंगी क्या होता है, लायबिलिटी समझा दूंगी क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में लगेगा, तो हम इसको तभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये लिख लो, एसेट का मतलब, कैपिटल का मतलब क्या, एसेट माइनस लायबिलिटी। ऑलराइट, now we have discussed 5 terms today: entity, transaction, sales, drawing, capital। ठीक है, धीरे धीरे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूंगी और टर्म्स एक्सप्लेन करती रहूंगी। हम लोग एक फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं 1 अगस्त से। वो प्रॉपर बैच होंगे, एक एक 1.5 घंटे के आपके लेक्चर्स चलेंगे। तो अगर आपको वो बैचेस ज्वाइन करने हैं, यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन द नंबर विच इज अपियरिंग ऑन द स्क्रीन, और you can contact me on the email ID which is showing onto the screen, or you can also contact me through my Instagram account. Again, the link is being shown on the screen only. और मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं कितना पढ़ी हूँ, कहाँ से पढ़ी है, आप सब लोग जो अबाउट सेक्शन है यूट्यूब का ऑफ द सेम चैनल, यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर। वहां पर भी मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। नाउ in the subsequent lectures, we'll discuss further accounting terms. So if you want to join the batch, you can approach me. The fee structure, the conduct of the class will be discussed over there only. So let's wind up today's session. Bye bye, take care, stay healthy.